সুপ্রভাত বন্ধুরা, আমরা এখন জয়পুরের হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ছি ব্রেকফাস্ট করে। এরপর যাব উদয়পুরে, আর তো মিডিলে পড়বে আমাদের চিত্তরগড় ফোর্ট। তো সেটা দেখে আমরা উদয়পুর হোটেলে থাকবো আর তারপরে উদয়পুরে ঘুরবো। এরপর যাচ্ছি চিত্তরগড়, উদয়পুর। চলো, বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, প্রচুর মেঘ আকাশে, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। ও হেজি আছে না, ঠিক আছে। এখানে সৌমিত্র বসছে, রাম দেব। সুন্দর এখানে এখানে ড্রেস, এটা কাল কেনা হলো। এই দেখো টপটা উপরে কি সুন্দর কালারটা, আর এই বান্নি স্কার্ট মেয়ে পরে দিয়েছে। আমার নতুন নতুন সব কিছু চাই, কেননা বাড়িতে কিছু নেই। না না, মানে ওর একটু সবজি প্রিপেয়ার, আর আমাকেও এরকম সাজানোর চেষ্টা করে। তো এই তো আমি পড়েছি এটা। তোমরা তো অনেকবারই থেকে থাকবে, কিন্তু এটা চিত্তরগড়ে বেশ ভালো লাগে মেয়ে বললো, মা এটাই পড়ো। তো চলো, বেশি বকবক করবো না, তোমাদের জায়গাগুলো দেখাই। গাড়িতে যাচ্ছি বলে তো তাই বকবক বেশি করা হচ্ছে। এখন এইরকম পড়েছে, পুরো গ্রে নয়, এটা কি কালার? পিচ কালারের প্যান্ট। এখানে একটা কোথায় যাবেন? আমরা এই যে মিডিলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চা খাওয়ার জন্য, কারণ ব্রেকফাস্ট করেছি, তখন চা খাইনি, সেই জন্য চা খাওয়ার জন্য। চাটা বড়িয়া করে তারা খুব সুন্দর করেছে। चाय नहीं पिए, लेकिन बहुत बढ़िया हुआ है। अब हम लोग के साथ चाय पिए, अब तो चाय पिए। ये चाय ডাল আছে, ডাল তড়কা খাবে কি? আমরা একটা হোটেলের মধ্যে এলাম, নামটা তোমাদের পরে বলে দিচ্ছি। এই যে মেনু ঠিক হচ্ছে, ও এক বলছে, ওর বাবা মেয়ে এক বলছে। মশলা আছে, ভেজ কড়াই আছে, ভেজ হাঁটি, আলু গোবি আছে, খাওয়া হচ্ছে। এখন 2 বাজে। প্লেন রাইস, কি জানি এটা কি, এটা কি বলবো, চাউ মশলা খেতে বসেছে। বাইরে বারিশ হচ্ছে, হ্যাঁ বটি একটা। বন্ধুরা দেখো কিরকম বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা বেরিয়েছি আজ সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। তো দেখা যাক কি করে আমরা চিত্তরগড় ফোর্ট দেখি।
খাওয়া দাওয়া করে বেরোলাম আর বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আমরা সকাল থেকে বেরিয়েছি, বৃষ্টি হচ্ছে, তো বেশ আসতে ভালো লাগছে, কোনো ব্যাপার না। কাল আমরা দুদিন খুব ভালোভাবে ঘুরেছি জয়পুরে, তখন বৃষ্টি হয়নি, সকালের দিকে হয়েছে, তারপর বৃষ্টি হয়নি। চিত্তরগড় এখান থেকে দেখাচ্ছে 49 কিলোমিটার, তো এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি কমেনি, তো অনেকটা জায়গা জুড়ে। তো দেখা যাক ওখানে কীভাবে দেখবো তো নিশ্চয়ই। চলো আমাদের সাথে তোমরাও ঘুরো। আর শুধু জার্নি হচ্ছে, আজকে শুধু চিত্তরগড় দেখবো আর তারপরে উদয়পুরে স্টে করবো। চলো। ज्यादा फंस गया बेचारा। सीमेंट का गाड़ी है। एक्सीडेंट हुआ है। দেখুন ড্রাইভার আটকে আছে, পা কেটে গেছে। ইস, দুটো ক্রেনও ওঠা যাচ্ছে না, কি অবস্থা। বন্ধুরা, আমরা চিত্তরগড়ে পৌঁছে গেছি আর আমরা গাইড নিয়ে নিয়েছি। এখান থেকে ওই ড্রাইভার বাবুই ঠিক করে দিলেন একজন গাইডকে। তো চলো আমরা চিত্তরগড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আর চিত্তরগড়ের কিছু ইতিহাস তোমাদেরকে আমি শোনাচ্ছি। আর আমাদের গাইড বাবু খুব ভালো ছিলেন, উনি অনেক কিছু আমাদের শুনিয়েছেন, আমরা শুনেছি গল্পগুলো, আর তোমরাও শুনবে, বেশ ভালো লাগবে। না উদয়পুর নেই, জয়পুর। वहाँ मैम लगेगा आपका एंट्री फी 450 पर पर्सन। कितना लगेगा? 450। यहाँ लगेगा 40 का, क्योंकि वो प्राइवेट है, ये सरकारी है। क्योंकि माई गेस्ट आफ्टर 1947 जब अपने देश में लेके डेमोक्रेसी राजा तंत्र गया, आज स्ट्रॉन्ग पोल। माई गेस्ट आज अपन बैठे हुए गाड़ी के अंदर, है ना मैम। उस टाइम पे राजा महाराजा बैठते हाथी और घोड़े के ऊपर, तो ऐसी बड़ी बड़ी पुलें बनाई जाती थी। और हमारी है कि राजा प्रभु श्री राम जी के वंशज है। प्रभु श्री राम पैदा हुए दिन में तो सूर्यवंशी है, लॉर्ड कृष्ण पैदा हुआ रात में तो चंद्रवंशी है। अपने इंडिया में 2 वंश के राजा, वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अंडरस्टैंड मैम? सो चित्तौड़ फोर्ट के बारे में सर कहते हैं, सर इसको 54 हिंदू राजाओं ने मिलकर बनाया, 2 मुगल्स ने पूरा तोड़ा, बट लास्ट अटैक किया अकबर ने 1568 एंड ही वाज लूटेड ऑन फोर्ट। ही वाज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय बिकॉज़ अकबर ऑन द मिशन दैट टाइम। अकबर ने जब इस राजपूताना पार्ट में आया, उसके दिमाग में एक बात थी, वो ये थी कि अगर मुझे राजपूताना जीतना है, राजपूतों को अपने फेवर में करना पड़ेगा। मंदिर तोड़ूंगा, कोई भी हिंदू राजा मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। अकबर जहाँ भी जाता करता शादियां, और जहाँ भी जब जाता वो करता लूटपाट, ये राजपूती रीत। सो माय गेस्ट एक्चुअल के राजपूतों के खून में इतना उबाल था ना मैम, कि गर्दन करने के बाद भी हाथ पर कंटिन्यू चलते रहते थे। माय गेस्ट यहाँ गया मैम 3rd पोल। सो वी विल क्रॉस टोटल 7 पोल ऑन द वे मैम। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द मेवाड़। और मैम मेवाड़ के बारे में कहते हैं कि ये शक्ति, भक्ति, बलिदान और त्याग की भूमि है। शक्ति में आता है नाम महाराणा प्रताप जी का, जो कभी झुके नहीं कभी किसी मुगल आर्मी के सामने। भक्ति में आता है ना मीरा जी का मैम, क्योंकि मीरा जी की शादी हुई ना मैम, वो जगह चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, और मीरा जी ने जहर पिया और टेम्पल के अंदर है मैम। রাজস্থানের সবচেয়ে বড় এবং ঐতিহাসিক দুর্গগুলির মধ্যে অন্যতম হলো এই চিত্তরগড় দুর্গ। প্রায় 700 একর জুড়ে বিস্তৃত এই দুর্গ। এই দুর্গ শুধু রাজপুত বীরত্বের প্রতীক নয়, বরং প্রেম, ত্যাগ ও গৌরবের কাহিনীর জীবন্ত সাক্ষী। মৌর্য বংশের সময় এর সূচনা হয়েছিল, পরে মেবার রাজবংশে এটা উন্নত করে। দুর্গ প্রবেশের জন্য এখানে 7টি বিশাল দরজা আছে। প্রতিটি দরজায় যুদ্ধকালীন ও প্রতিরক্ষার জন্য শক্তিশালীভাবে নির্মিত ছিল। দুর্গের ভেতরে পা রাখলে যেন ইতিহাসের পাতা খুলে যায়। এখানে রয়েছে রাজপ্রাসাদ, কীর্তিস্তম্ভ, বিজয়স্তম্ভ, প্রাচীন জলাধার, জৈন মন্দির, হিন্দু মন্দির, আর অসংখ্য মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে কীর্তিস্তম্ভের পাশে অবস্থিত জৈন মন্দির, কালিকা মাতা মন্দির আর মীরাবাই মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তো চলো আমরা সবগুলোই দেখব, আর তোমরা আমাদের গাইডের মুখ থেকে শুনে নেবে এই কাহিনী।
তো বেশ ভালো লাগবে। চলো আস্তে আস্তে আমরা সব কিছু দেখি। দুর্গের ভেতরেই রয়েছে রানী পদ্মাবতীর প্রাসাদ, যা শুধু রাজকীয় স্থাপত্যের জন্য নয়, বরং তার সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদার কাহিনীর জন্য। ইতিহাস বলে এখানে একাধিকবার আক্রমণ হয়েছে। আলাউদ্দিন খিলজি, বাহাদুর শাহ, এমনকি মুঘলদের আক্রমণও সহ্য করেছে এই দুর্গ। ये जो फोर्ट है ना एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, 750 एकड़ का एरिया है और राउंड है पूरा फोर्ट में 13 किलोमीटर। रोड बनी हुई 13 किलोमीटर में। एक की आप ये देखो कि साथ में आप देखो पूरा गांव बना हुआ है। आज भी इस किले के ऊपर 5000 लोगों के प्रॉपर मकान बने हुए हैं। ये देखना आप मैम, ये पूरा गांव है, मार्केट है, सब कुछ है ऊपर। आगे चलेंगे राइट, ये देखिए मैम पूरा ये देखो सर पूरा लिविंग टाउन फोर्ट में। मैम आपने कभी महाराष्ट्र विजिट किया है? महाराष्ट्र ना कभी जाओगे घूमना मैम तो मोस्टली टेंपल मिलेंगे आपको उधर तुलजा भवानी के, जो कि शिवाजी महाराज की कुल देवी है, शिवाजी की। तो सामने आ रहा है मंदिर तुलजा भवानी। इट वाज बिल्ट बाय बनवीर एंड ही वाज बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र। तो जैसे हमारे इधर मानते माँ काली, उधर मानते तुलजा भवानी। माता एक ही स्वरूप अलग अलग है मैम। सामने मंदिर आ तुलजा भवानी का। यू कैन सी मैम ये सब देखो मैम मकान बने हुए लोगों के मैम। इधर চিত্তরগড়ে দাঁড়ালে যেন সময় পিছিয়ে যায়। পাথরের দেওয়াল, রাজপ্রাসাদ, মন্দির আর সুউচ্চ মিনারগুলি একে অপরকে ইতিহাসের গল্প শোনায়। ईस्ट है हमारे यहाँ के राजा होते सूर्यवंशी। साल में तो 4 महीने बरसात के सूर्य भगवान बाहर नहीं आते थे, तब हमारे यहाँ के राजा उस विंडो में सोने के सूर्य की उसकी पूजा किया करते थे। देन जस्ट बिहाइंड यू स्टेबल फॉर हॉर्सेस, यहाँ पर बांधते थे 7 घोड़े। मैं नीचे यहाँ पर ये तो बोले घोड़ों के लिए जिनकी होती थी अश्व पूजा। फिर ऊपर देखो आप इंस्ट्रूमेंट हाउस है, जहाँ पर बजाते थे बड़े बड़े नगाड़े, जो लूटे अकबर ने या आज के अजमेर की दरगाह में रखे हुए। आपने देखिए मैम अजमेर में है दरगाह, अजमेर चाहिए उसमें तो दे करके हमें देख एक्चुअली तो यहाँ के नगाड़े में लास्ट देखो अकबर का, अकबर ने इसके लोगों लूटा लूट के लेके जाते। सामने आपके टनल को पद्मनी रानी इसके थ्रू जाती थी नहाने। कहाँ होती थी ओपन? आई विल शो इन मिडिल मैन। ये बिलोंग टू द रॉयल फैमिली से इनमें होती पर्दा पर था, तो औरतों को आने देना होता था यहाँ से। कहाँ होती थी ओपन? आई विल शो इन मिडिल मैन। अब इसको बंद कर दे सरकार फॉर और सेफ्टी मैम, क्योंकि टाइम गया ना मैम। अलाउद्दीन ने तोड़ा सर, सुल्तान शाह ने तोड़ा, अकबर ने लूटा में और फिर बना उदयपुर। কেমন করে দিয়েছে সব। उदयपुर बनाना मैम, उदयपुर कब बना? अकबर ने चित्तौड़ का जितना हिम्मत बनाया उदयपुर, और अकबर ने चित्तौड़ का नाम बदल करके अकबराबाद। 1650 मुगल सत्ता के नाम चेंज कर देंगे, आगे हिंदू राजा आता कि एक नाम करते हैं जो था। तो कनल पोर्शन एंड नाउ वी गो टू मेल पोर्शन। इधर जो भगवा फ्लैग है वो शिवा टेम्पल है सर। प्रताप जगह में बिता हुआ था बचपना सर। বাপ রে কি সুন্দর লাগছে। उन्हीं की वजह से इसमें कभी याद है। তখন টাইমে কি ছিল? आइए मैम उतार देंगे। ये बात चलो These all temple dedicated to Lord Krishna, but name are changed.
ओके, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों कृष्ण मंदिर है। इस मंदिर के बारे में से कहते हैं अपने इंडिया के जो 3 सबसे बड़े मंदिर है, तीनों इनकी कॉपी है। फ्रंट जो पार्ट है देखो आप, गुजरात का सोमनाथ इसकी कॉपी है, मिडिल जो पार्ट है नासिक का त्र्यंबकेश्वर है, और पीछे से उड़ीसा का जगन्नाथपुरी है। जब ये मंदिर बना, ये था विष्णु मंदिर सर, तो देखिए विष्णु जी का विकल है गरुड़ा काली मूर्ति में। अलाउद्दीन ने जीता, इसको तोड़ दिया, कुंभाजी ने इसको रिस्टोर के 1433 में एक नया नाम दिया कुंभ श्याम, कुंभा का कुंभ, श्याम मतलब कृष्ण, सुभद्रा एंड बलराम। मैम आपने कभी उड़ीसा से यार তখন তৈরি মন্দির সোনারা দেখতে পাচ্ছি। দেখো তুমি দাঁড়ানো উপরটা দাঁড়া, তারা আমাদের आताफल बंगाल में, हाँ आता जितने पेड़ सब आताफल के पेड़ में। तो जब भी आते सरकार निकालती है इनके यहाँ पर टेंडर में। फर्स्ट तो इनका यूज होता है खाने में, और सेकंड इनका यूज होता है हमारे यहाँ पर लोकल क्राफ्ट, लोकल कल्चर में। कल्चर किस से I will show you. I will show you. लास्ट टाइम मैं मलबार में आया तब मैंने क्या कटिंग काट के रखी थी। क्या? मैंने बोला था ना कस्टर्ड एप्पल का यूज होता है। यू कैन सी मैम, ये मैम देखो ये क्या लिखा हुआ है, उनका तन चाहे ढकाना हो पर विदेशी मैम पर खूब फपते हैं उनकी बनी साड़ियाँ, ये औरतें बनाती है ऐसे मैम हमारे यहाँ पे। इसलिए सरकार অন্ধকার আসছে, দেখে তো সুন্দর আছে। ये इसका देखो इंट्रेंस गेट है भी लॉक है मैम, पहले खुला हुआ बिफोर लॉकडाउन। देखिए माई का इस कैंपस में 4 जगह है। सबसे पहले विजय स्तंभ इस फूड का मेन टावर है, इसके फाउंडर कुंभाजी थे। कुंभाजी ने 1440 में वो ज्वाइंट मुगल आर्मी को रहे एक साथ गुजरात और मध्य प्रदेश, युद्ध जीतने की कोशिश बनाया। इसका नाम विजय स्तंभ है, यानी विजय की याद में बनाया गया स्तंभ। 10 साल लगे इसको बनने में। 157 इसके अंदर स्टेप्स है, बट अभी बंद फ्रॉम कोविड। एंड वेरी गुड कार्विंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ हिंदू गुडन गुड डेज, बट ऑल डीप आर बाय मुगल आर्मी। एंड वी विल सी टोटल 2 टावर, विजय स्तंभ, दूसरा आएगा लास्ट में कीर्ति स्तंभ। सो दैट टाइम दे यूजिंग फॉर द वॉचिंग अराउंड द फोर्ट। And just behind you, ma'am, ये जो पूरा ग्राउंड है, मैम, we will salute the land of a sacrifice where 16,000 ladies jump into the fight to save their honor along with their children, so they are called as जोहर, मैम। जो रानी पद्मिनी मैम जोहर किया ना मैम, पिक्चर देखी पद्मावत मैम, तो ये देखो मैम सामने होमो बना हुआ है, होमो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, उसके पीछे देखो साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो एक्चुअली होता था यहाँ पर गड्ढा 10 से 15 फुट का, राजा मारे गए, मुगलों ने एंट्री करी, यहाँ पर गड्ढा था, आग लगा दी, अग्नि की पूजा करके राजपूत औरतें अपने आप को अग्नि के समर्पित करती है। एक बार में यहाँ पर 16,000 लेडीज की जोहर परफॉर्म करने के बाद अलाउद्दीन ने पूरे किले को कॉन्कर किया। उसका एक कमेंट्स था कि जब खूबसूरत रानी नहीं रही तो ये नगरी किस काम की। उस टाइम पर इस किले में 113 टेम्पल थे, 84 पानी के पौंड थे। इसलिए माई गेस्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में से कहते हैं कि गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब पदैया। 3 बार यह जोहर हो भाई राजपूत लेडीज, हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम मैम। दूसरा होता है 1535 में भाई राजमाता कर्णावती। आपके बंगाल में होता है काली मंदिर, हमारे तो शिवा टेम्पल होता है मैम। और आपने आपकी लाइफ में जितने भी शिवा टेम्पल देखा ना मैम, आपको मिलता है शिवलिंग, बट वहाँ पर मूर्ति है 9 फुट की मैम, 9 फुट की मूर्ति प्रूफ करती है राजा कितना स्ट्रॉन्ग होते, ब्रिटेन में पहले होता था। কি মন্দিরটা বানিয়েছে দেখ, ওই যে আগেরটা দেখো, এইসব দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। के 12वें दिन उस दिन उदयपुर में उनके वंशज विश्वराज सिंह जी मेवाड़, जो भी एमएलए नाथद्वारा से बीजेपी के मैम, तो वो यहाँ पर आकर उनको देते आहुति ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। ऊपर देखो टूटा हुआ टेम्पल है, टूटा हुआ गेट है, टूटा टेम्पल है। यू कैन सी दिस ऑल कॉन्कर पार्ट बाय मुगल आर्मी, क्योंकि झुके नहीं। आप कितने साल के हैं सर?
155 आपने आपकी लाइफ में कभी सुनने को मिला क्या कि खुदाई में कभी कोई दरगाह निकली? नहीं सुनो कि खुदा में हमेशा मंदिर निकलते हैं। आज अपने इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी जो दरगाह है वहाँ पे पहले मंदिर थे, मंदिरों को तोड़कर दरगाह बनी गई है। इसलिए दो पार्लियामेंट के दिखे नहीं। আরো কার্যগুলো দেখো। ये देखिए मैम, अगर आप नेट पर जब देखा होगा चित्तौड़गढ़ का तो ये वाला व्यू है। হ্যাঁ जब वही पॉइंट जब राजपूत रोड पे आती है नाना भाई टनल फ्रॉम कुंभा पैलेस। आई एम शोइंग यू देयर मैम। ওই মাই एग्जिट फुली ब्लॉक एंट्रेंस मैम आज भी है। सो माय गेस्ट आज भी अर्ली इन मॉर्निंग उधर तो लेडीज इधर जेंट्स कंबाइन नहाते हैं मैम। वैसे नहाना दोनों अलाउड नहीं है, तो लोकल पब्लिक नहाती है। गर्मी आएगी सूख जाएगी, बारिश आएगी भरा जाएगा। पहले 84 था, अभी प्रॉपर 22 है। आई विल शो यू ऑन द वे। सिटी बनी वो भारत के आजाद होने के बाद बनी है। सो माय गेस्ट स्टैंड हियर, आई विल टेक योर पिक्चर। এইসব দেখে আমরা মুগ্ধ। কি ভালো লাগছে, মেয়ের ড্রেসটা অপূর্ব লাগছে আমার। चला जाएगा। हाँ हाँ आमिर ने इसको रिस्टोर करके काली माँ की मूर्ति ले गई। सूर्य मंदिर अपने अपने इंडिया में 3 थे, कोणार्क में, चित्तौड़ में, तीसरा गुजरात के मोढेरा में। और हमारे यहाँ के राजा तो सूर्यवंशी, तो मैम सूर्य टेम्पल तो चाहिए ना मैम। भैया मान लेंगे ये देखो मैम, ये जल महल ये जल महल है मैम। अभी देखो मैम पानी का भी शॉर्ट है ना मैम। और जब ये देखो जब आती है मैम प्रॉपर बारिश, तो पानी से मैम देखो कितना फर्क है। और अभी देखिए मैम आप, तो मैम आप आ जाओ, ये 2 साल बाद आओ या 5 साल बाद आपको मेल देखना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसमें जाने का रास्ता नहीं है। रानी आती जाती बाई बोट। साल के 4 महीने रानी यहाँ पर, 8 महीने बाद देखा ना कुंभा पैलेस वहाँ पर मैम। सो दिस वन समर पैलेस। सो माय गेस्ट, आज इस पूरे फोर्ट को याद करते हैं रानी पद्मिनी जी और महाराणा प्रताप जी की वजह से, क्योंकि रानी ने अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर किया। इसी चलेंगे थोड़ा भैया, हाँ इसे चला दो आप। रानी पद्मिनी ने मैम अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर किया और महाराणा प्रताप जी ने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट को नहीं जीतूंगा, दिस वन फॉर फोटोग्राफ्स, हॉर्सेस, कपड़े। हाँ, रानी ने अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर किया और प्रताप जी ने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट को नहीं जीतूंगा, मैं कभी राजमहल में नहीं जाऊंगा, अपनी मूंछों के ताव नहीं दूंगा, कभी चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा। महाराणा प्रताप जी ने एक ताव नहीं दूंगा, कभी चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा। महाराणा प्रताप जी ने एक एक करके पूरा मेवाड़ जीता, पर चित्तौड़गढ़ किले को कभी जीत नहीं पाए। तब ये किला आता था अकबर के अंडर में, इसीलिए प्रताप जी को बोलते हैं भीलू राणा, यानी भीलों के राणा मैम। बने और राजपूतों से बौद्ध बने। भाई इसमें होल्ड करना चाहिए। ये मैम देखो उनका कीर्ति समय, ये उनका जैन मंदिर है मैम। उतरेंगे मैम? ये तो उनका मंदिर है और इनका कीर्ति समय में। इसमें पूरा जैन का এখানে আমরা চা খেলাম। মাঝে মাঝে দাঁড়ানোটাই ভালো লাগে, মাঝে মাঝে দাঁড়াবো, চা খাবো। হ্যাঁ গো, আরে তো শুধু দাঁড়ালাম এখানে বন্ধুগণ, ইভিনিং ওয়াক করছি।
আর মাত্র 48 কিলোমিটার দেখাচ্ছে উদয়পুর। এরপর উদয়পুর যাব, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লং জার্নি। বন্ধুরা, আমরা চিত্তরগড় থেকে ফিরলাম, এই যে হোটেলে পৌঁছে গেলাম, উদয়পুর হোটেলে। হোটেলের নাম হচ্ছে হোটেল সুবিন রেসিডেন্সি। তো আমরা পৌঁছে পড়ে কিছু কাজ থাকে সেগুলো তো করে নিল সৌমিত্র, আর তারপরে এরপর আমরা চলো হোটেলের রুমটা শর্টকাটের মধ্যে তোমাদের দেখিয়ে দিই একটা। তো রুমটা খুব সুন্দর ছিল, আর দেখো এখানে করিডোরটা খুব সুন্দর, এখানে বেশ ভালো লাগলো। ওপারে মন্দির আছে একটা, আর এই যে রুমের মধ্যে দেখো কি সুন্দর, রুমের মধ্যে ঢুকতেই দুটো বেড, একটা সিঙ্গেল একটা ডবল বেড, আর মিরর আছে, টিভি আছে এই যে খুব সুন্দর। আর চায়ের জন্য যেগুলো দরকার উপকরণগুলো সেগুলো আছে, সব কিছু বেশ ভালো লাগলো। অনেকটা জায়গা, আর বিরাট বড় একটা আলমারি দিয়েছে, ওখানে আলমারি আছে, সব কিছু সুন্দর। আর বাথরুমও আছে ঝাঁ চকচকে, বেশ ভালো লাগলো। আর আমরা এরপর ফ্রেশ হব, আর খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে ডিনারে, তো ডিনার এক্ষুনি চলে আসবে, রুমেই দিয়ে দেবে। তো আমাদের আজকে সারাদিনের জার্নি, তো সকাল থেকে বেশ ভালো লাগলো জার্নি করে, নানা রকম ওখানে হোটেলে খেলাম, চিত্তরগড় দেখলাম। সত্যি চিত্তরগড় দেখে অসাধারণ লাগলো, একদম আমি চিত্তরগড়ের মধ্যে ইতিহাসে ডুবে গেছিলাম, তো বেশ ভালো লাগলো। আর এরপর আমরা দেখো কি কি খাবার এসেছে, ওই যে লাচ্ছা পরোটা, আমি তো প্লেন ভাত আর একটা সবজি, আর কি ছিল মিক্স দুটো, তো ওই দুটো সবজি, আর আমি ভাত অর্ডার দিয়েছিলাম, আর ওরা সবজির মধ্যে ওই মাশরুম ছিল, আর লাচ্ছা পরোটা বাবা মেয়ে খাবে। তো চলো এইসব খাওয়া দাওয়া করে তারপরে কালকে পুরো উদয়পুর ঘুরবো আর তোমাদেরকেও দেখাবো। তো বেশ মজা করছি, বেশ আমরা এনজয় করছি, ঘুরে ঘুরে দেখছি, মানে এত ভালো লাগছে না সত্যি সমস্ত কিছু। আর ভাইদেরকে তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ওরা এত সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছে, তো বেশ ভালো। আমার ভাইদের যে এজেন্সি থেকে এসেছি আমরা, তো খুব ভালো, ভাইরা বেশ ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছে সব কিছুই। তো চলো খুব তাড়াতাড়ি আমরা এরপর ঘুমিয়ে পড়ি, সকাল সকাল উঠে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে আবার বেরিয়ে পড়বো দেখতে, আর তোমাদেরকেও দেখাবো। চলো তাহলে, গুড নাইট সকলকে।